Good morning, students. Now, welcome to online classes. Yesterday, we started doing the new chapter, The Adventure of the Mason. Now, today we will finish up reading the story. So, let's just revise the story very quickly. So, there was a mason. He was very poor. One night, a stranger came and gave him a job to build a underground storeroom under a fountain of his house. So the mason built that underground storeroom, and then both the stranger and mason they kept three big pots full of money inside that storeroom, and then they covered the passage and removed all the signs of construction from there, so that nobody could make out, nobody should come to know that there was some construction was done, and an underground vault or storeroom was built ever. So, and mason was also blindfolded when he was brought to do that work, and when he was taken back to his home, and for that stranger gave him 3 gold coins. For few days, for 15 days, fortnight means for 15 days, the mason and his family, they lived very happily. They had enough food to eat and everything. But as soon as the money finished, again they became poor. For few years, the mason kept on working here and there and kept on earning small earnings and kept on just supporting his family. So one day, an old rich man came over there to the mason's house, and he asked him that he was honest. Is he honest? He had heard that he was honest. Mason said honest and poor. So mason said, yes, I am poor. As you can see, look at me, my clothes, they are all torn, they are all shabby, and look at my house, it is in a very bad state, dilapidated state. It's all broken. So I am very poor. Then the rich man offered him a job, that okay, I'll give you a job. Would you be ready to do that? So mason said, yes, I will do that. So then the rich man says, okay, you will do your work in a low cost, at a low price. So the mason said, okay, as low as the other mason, any other mason in Granada, कि उतना ही कम पैसे लूँगा जितना कोई और मेसन इस ग्रेनाडा सिटी में लेता है. इतना तो मतलब कम से कम दे दो कि मैं अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का दाल रोटी चला सकूँ. तो वो रिच मैन कहता है कि ही हैड अ हाउस which is in a very bad state. अब वो उसकी टेक केयर पे उसके ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना टूट चुका है, इतना उसको कंस्ट्रक्शन पे उसकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जितना उसको वो जब उसने ख़रीदा था तब उतना उस पर खर्चा नहीं हुआ था. आज की डेट में उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है. तो जो रिच मैन होता है वो बहुत कंजूस भी होता है, माइजर भी होता है, तो उसको वो ये नहीं चाहता कि उसका ज़्यादा पैसा खर्चा हो. तो वो कह रहा है, वो मेसन से बोलता है कि भाई ऐसा कुछ करो कि भाई कम से कम पैसों में वो जो घर है वो थोड़ा दिखने लायक हो जाए, कि साल भर में थोड़ा से थोड़ा खर्चा करके वो थोड़ा दिखने लायक बन जाए. तो मेसन को वो लेके जाता है. नाउ लेट्स रीड फर्दर. The mason was accordingly conducted means taken to a large deserted means जो खाली पड़ा हुआ घर है. House that seemed going to ruin means खंडहर बनने वाला था, जो बिल्कुल बर्बाद होने वाला था. ऐसे घर पर वो जो रिच मैन है वो मैसन को वो लेके गया. Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court, where his eye was caught by an old Moorish fountain. तो वो घर के अंदर ही बहुत सारे हॉल्स और पैसेजेस और चेम्बर्स को पार करके वो अंदर के कोर्टयार्ड में आया, और अंदर के कोर्टयार्ड में उसकी मेसन की नज़र किस चीज़ पे पड़ी? एक मूरिश फाउंटेन पे. He paused for a moment, तो वो 1 सेकेंड के लिए रुका.
फॉर अ ड्रीमिंग रिकलेक्शन ऑफ द प्लेस केम ओवर हिम। तो उसको अचानक से ड्रीमी मीन्स धुंधली धुंधली थोड़ी थोड़ी याद उसको आने लगी कि कई साल पहले उसने इस तरह के फाउंटेन के नीचे एक अंडरग्राउंड वॉल्ट बनाया था, स्टोर रूम बनाया था। Pray, said he, who occupied this house formerly? Formerly means earlier, कि पहले इस घर का मालिक कौन था? A pest upon him. Pest upon him means curse him, कि उस पे कीड़े पड़े। Cried the landlord. It was an old miser who cared for nobody but himself. कि वो एक माइजर था, कंजूस था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, किसी और के बारे में नहीं। He was said to be immensely rich. Immensely means huge, big, very great, extremely, filthy rich. He had no relations. मगर उसके कोई relatives नहीं थे, उसका कोई बेटा बेटी कोई वाइफ कोई नहीं था उसका। He died suddenly, but nothing could be found except a few gold coins in a leather purse. He was very rich, बट जब वो मरा तो इतने इस पूरे घर में कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ गोल्ड कॉइन्स के अलावा जो कि एक पर्स में थे उसके। वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी फॉर सिंस हिज डेथ। अब उसकी डेथ के बाद मेरी किस्मत बिल्कुल डूब गई, मेरी किस्मत पे तो जैसे ताले लग गए। पीपल प्रिटेंड टू हियर द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चेम्बर। अब लोगों ने बात बनानी शुरू कर दी कि रात में इस घर के एक चेम्बर में सिक्कों के खनकने की आवाज़ आती है। क्लिंकिंग मीन्स खनकना। वेयर द ओल्ड माइज़र स्लेप्ट, और वो उस चैम्बर में से आती है जहाँ पे वो ओल्ड माइज़र वो बूढ़ा कंजूस वो सोता था। एज इफ़ ही वर काउंटिंग ओवर हिज मनी, जैसे कि वो रात में बैठ के अपने पैसों को वो गिन रहा है। एंड समटाइम्स अ ग्रोनिंग एंड मोर्निंग अबाउट द कोर्ट। अब और समटाइम्स लोगों को ये सुनाई देता है कि ये कोर्ट यार्ड में कोई धीरे धीरे आवाज़ें कर रहा है, मोन कर रहा है, करा रहा है। Whether true or false, these stories have brought a bad name on my house and not a tenant will remain in it. कि मुझे नहीं पता ये जो कहानियाँ, ये जो बातें लोग कहते हैं वो सच हैं या झूठ, मगर इन सब बातों की वजह से इस घर को हॉन्टेड हाउस बोल दिया गया और कोई भी टेनेंट मीन्स किराएदार यहाँ पे आके रुकता ही नहीं है। इनफ सेड द मैसन विद डिटर्मिनेशन, कि उसने कहा ओके फाइन, लेट मी लिव इन योर हाउस रेंट फ्री, कि मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दो रेंट फ्री। आई विल नॉट पे यू एनी रेंट अंटिल सम बेटर टेनेंट प्रेजेंट, अंटिल यू गेट सम बेटर किराएदार, बेटर टेनेंट हु विल पे यू द रेंट, एंड आई विल एंगेज टू पुट इट इन रिपेयर। और मैं इस घर की फ्री में, तुम मुझे फ्री में इसमें रहने के लिए दे दो, और मैं इसकी घर की जो मरम्मत है, रिपेयर करनी है, वो मैं फ्री में कर दूँगा तुम्हारी। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मेसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड। ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, एक्सेप्टेड मीन्स मान जाना। अग्रीड, he moved with his family into the house and fulfilled all his engagements, कि उसने अपने परिवार के साथ वो उस घर में आके रहने लगा और उसने उस घर की सारी रिपेयर भी कर दी। लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे। ही रीस्टोर्ड इट टू इट्स फॉर्मर स्टेट, धीरे धीरे उसने वो पूरे घर को जो पहले उसकी जो कंडीशन थी, पहले जो उसकी इतनी सुंदर बिल्डिंग आर्किटेक्चर था, उसी की तरह उसने बना दिया उसको। द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड वॉज नो मोर हर्ड एट नाइट, और जो वो सिक्कों के खनकने की आवाज़ आती थी तो अब किसी को नहीं सुनाई देती थी, बट बिगैन टू बी हर्ड बाय डे in the pocket of the living mason. But the clinking of gold was heard in the day in the pockets of the mason. मगर कहाँ सुनाई देने लगी? घर में तो सुनाई देनी बंद हो गई, मगर कहाँ सुनाई देने लगी? मेसन की पॉकेट के अंदर। कैसे? क्योंकि उसको याद आ गया था कि वे वही घर है जहाँ पे उसने सीक्रेट वॉल्ट बनाया था। In other words, he increased rapidly in wealth. अचानक से उसके पास पैसा आ गया।
to the admiration of all his neighbors and became one of the richest men in Grenada. And धीरे धीरे वो सबसे अमीर आदमी बन गया पूरे ग्रेनाडा सिटी में. He never revealed the secret of the vault until on his deathbed to his son and heir. तो उसने कभी भी उस सीक्रेट वॉल्ट, उस सीक्रेट स्टोर रूम का पता किसी को भी नहीं बताया, ये सीक्रेट किसी पे भी रिवील नहीं किया. मगर जब वो अपनी डेथ बेड पे था, वो मरने वाला था, तब उसने अपने बेटों और अपने जो आगे उसके वो थे, अपने उसके ग्रैंड सन्स थे, उसके जो वो थे, उसके सारे बिजनेस को जो संभालने वाले थे, उनको उसने वो उस वॉल्ट का, सीक्रेट वॉल्ट का के बारे में बताया. सो दैट्स द स्टोरी. दैट्स हाउ द mason, a poor mason became a rich man. That's why the story has been named The Adventure of the Mason. ठीक है ना, कि एडवेंचर हुआ उसके साथ कि भी कहाँ वो ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाता था और कहाँ वो अचानक से उसी घर में पहुँच गया जहाँ पे उसने सीक्रेट वॉल्ट बनाया था और पैसा उसके अंदर छुपाया था. तो उसको भी पता था कि कैसे उस वॉल्ट के अंदर जाना है, कहाँ से पैसेज निकालना है. तो धीरे धीरे वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी बन गया. सो दैट्स द स्टोरी. Thank you very much. Until next time, take care. Bye bye.